तो लक्ष्मण रेखा भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है. देयर इज नो रियल लक्ष्मण रेखा इन वाल्मीकि रामायण. सीता जी का डिस्क्रिप्शन सुन के, शूर्पणखा की बात सुन के रावण के अंग अंग मथ जाते हैं. तो वो रिवेंज नहीं है. रावण इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग आउट ऑफ लस्ट. How was Ram's character like portrayed in Valmiki's Ramayana? तो उनको श्याम वर्ण कहा गया है. इतने गोरे चिट्टे तो वैसे ही नहीं है. एक्टिंग के बारे में मैं नहीं कह रही, पर केवल लुक के बारे में कह रही हूँ. आई थिंक प्रभास इज मोर राम लाइक देन रणवीर. नॉट रणवीर्स फॉल्ट, ही इज चॉकलेटी. दैट रीगलनेस जो एक राजा में होना चाहिए वो नहीं है. Do you believe that Indian identity, the depth and the realness of Lord Ram, Mata Sita and entire Ramayana is somewhere missing in the trailer? Rakshasas were not out of this world, right? They were people like us. They were tribes who lived in Lanka. Non-human जैसे दिखाना. The team has shied away from being true to Valmiki Ramayana because they are fearing, or maybe they wanted to stay true to Ramanand Sagar ji wala version. Hello and welcome to ANI Interviews. My name is Naman Yadav and with me right now is Ami Ganatra. She is an author and scholar known for her books on Mahabharata and Ramayana, the epics as they were originally written without modern retellings or any fictional twists. Welcome to ANI Interviews, Ami. Let me start with the Ramayana trailer. It was much anticipated. People were really looking forward to it, and it was dropped at 4 a.m. in the morning, around 4:15 a.m. in the morning. What's your first reaction to the trailer? How would you rate it out of 10? पसंद आया, नहीं आया, और क्या पसंद नहीं आया? Honestly, I don't know how to rate it. It's better than the initial cuts that they had shared. Initially, जो शुरुआत का आया था, उससे better है. Um, as you gave my introduction, I want the representation of epics true to the original. At least from the trailer, I don't think that is the case, especially not true to Valmiki Ramayana. I work on Valmiki Ramayana, which is the Itihas, the original, the OG of Ramayana is Valmiki Ramayana, and it is not true to that. Especially when they say Ravan ruled from revenge. The theme itself. So the issue is the theme itself. And I know that popular story is that Ravan took revenge on Sri Ram and Sita ji because Sri Ram and Lakshman cut her ears and nose. पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि रावण कोई बदले के लिए नहीं कर रहा है. बदला क्या होता है? बदला ये होता है जब आपको कोई कुछ बुरा करे और आप सामने कुछ करते हो. दैट इज बदला, राइट? रावण का शुरुआत का भी जो भी विजय यात्रा जो हम कहते हैं, जो उन्होंने दिखाया हुआ है, द वे यश कम्स इन, आई थिंक यश इज पोर्ट्रेड रियली वेल. Ravan is cruel and he's shown cruel. I think I loved the way Yash has been portrayed, no doubt about it. But where they say, the theme which says Ravan ruled by revenge, that is not true. Because even initially, जब वो शुरुआत में भी सबसे लड़ाई करने जाता है, रावण को वरदान मिलने के बाद, वो कोई बदले के लिए नहीं किया है. He is just that. वो क्रूर है. उसे बस अपना आधिपत्य स्थापित करना है. He wants to just rule over everybody. That's his अहंकार. तो रिवेंज से नहीं रूल कर रहा है. That is one. The more important part was जब उसमें दिखाया है कि शूर्पणखा रावण के पास जा रही है, वो छोटा सा जो बिट उन्होंने दिखाया ना, और रावण इसीलिए रावण कह रहा है कि तुम्हारा अपमान किया, अब मैं भी राम का अपमान करूंगा, तीनों लोगों में अपमान करूंगा वगैरह. दैट डायलॉग दैट ही हैज, दैट इज, वो वाल्मीकि रामायण में वैसा नहीं है. इनफैक्ट अगर मैं आपको वाल्मीकि रामायण की छोटी सी कथा बताऊं कि किस प्रकार वाल्मीकि रामायण में आया है, तो शूर्पणखा जाती है, मोहित हो जाती है श्री राम और लक्ष्मण से, ये तो हम जानते हैं. और शूर्पणखा जब सीता जी को मारने का प्रयत्न करती है, तब जाके श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इसके नाक और कान तुम काट दो, पनिशमेंट के, दंड के रूप में. तो पहले तो शूर्पणखा जाती है खरदूषण जनस्थान में, जो उनके कजिन्स है उनके पास, और वो खरदूषण 14,000 सेना लेकर आते हैं और श्री राम पर अटैक करते हैं. सिंगल हैंडेडली, अकेले श्री राम 14,000 सैनिकों का, राक्षस सैनिकों का वध करते हैं. तब शूर्पणखा रावण के पास जाती है. जब रावण के पास जाती है शूर्पणखा, तब रावण को पता भी नहीं है कि उसके राज्य के इस भाग में, जनस्थान में क्या हुआ है. वो अपने मस्ती में है. तब पहले तो शूर्पणखा जाके उसे डांटती है कि भाई तुम कैसे राजा हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम तुम्हारे राज्य में चल क्या रहा है, तुम्हारे जैसे राजा को तो लोग निकाल देंगे, पदभ्रष्ट कर देंगे. पहले वो सिखाती है. फिर कहती है देखो मेरे साथ क्या हुआ. तब रावण का ध्यान जाता है और रावण पूछता है भाई क्या हुआ.
अब देखो, अब अगर रिवेंज होता तो तुरंत, जैसे शूर्पणखा कहती श्री राम लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए, इट वुड बी द एंड ऑफ इट, राइट? परंतु एंड देन रावण वुड बी लाइक, हाँ मैं तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। पर शूर्पणखा ये नहीं कहती कि नाक कान काटे हैं। शूर्पणखा कुछ और कहानी बताती है। शूर्पणखा कहती है, भाई मैंने जंगल में एक स्त्री देखी। स्त्री कैसी? जैसे स्त्रियों में मणि, कोई अप्सरा यक्ष ऐसा भी कोई मैंने नहीं देखा है जो उसके जितना सुंदर है। वो तो ऐसी है कि अगर वो किसी का आलिंगन कर ले तो वो पुरुष तो इंद्र समान हो जाए। तुम्हारे पास सारे मणि हैं, वो तुम्हारे पत्नी बनने के लायक है और तुम उसके पति। इसीलिए मैं सीता को तुम्हारे लिए लाने जा रही थी। तब So लक्ष्मण she ने lied. She शी lied. लाइड, She lied. शी लाइड टू हिम। एंड व्हाई शी लाइंग टू हिम? अगर रिवेंज और बहन से प्यार और ये सब होता तो वो सीधा कह देती ना, जो मुझे ये पसंद आ गए थे, मैंने जो भी ये लोग ने मेरे नाक कान काट दिए, दैट वुड हैव बीन इनफ। पर ऐसे नहीं होता है। वो कहती है Hmm. अगर तुम सीता को चाहते हो तो तुम उठ कर जाओ। और सीता जी का डिस्क्रिप्शन सुन के, शूर्पणखा की बात सुन के, रावण के अंग अंग मथ जाते हैं। एंड ही कैन नॉट होल्ड हिमसेल्फ बैक एंड ही आज गोज। की आज की टर्म में सुपर्णखा जी ने रावण को रेज बेट किया। दैट इज द एग्जैक्ट जेंजी टर्म। ही वॉज रेज बेटेड शूर्पणखा से। तो वो रिवेंज नहीं है। रावण इज डूइंग व्हाट इज डूइंग आउट ऑफ लस्ट, नॉट आउट ऑफ रिवेंज। और ये बात मुझे इसलिए लगती है कहनी जरूरी है, कारण आजकल आप देखो, लड़कियों को लगता है कि भाई पति हो तो रावण जैसा। हम्म। उसने तो अपनी बहन के लिए इतना बड़ा युद्ध मोड़ लिया और सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया, वो तो कितना महान है। और सीता जी को हाथ नहीं लगाया, वो लोग कहते हैं ही इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बिकॉज ही हम्म। वेटेड फॉर कंसेंट। नहीं भाई, उसने सीता जी को हाथ इसलिए नहीं लगाया कारण उसे अपने मृत्यु का डर था। रावण ने इतनी सारी स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया है, उनको वायोलेट किया है, इतने सारे कि एक पुंजिक स्थला नामक स्त्री है हु हम्म। रावण वायोलेटेड एंड शी कंप्लेन। उसने जाके फिर ब्रह्मा जी को कंप्लेन करा। तब वरदान भी ब्रह्मा जी से था, राइट? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब ये किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा तो उसके सर हम्म। के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ओ। कथा वाल्मीकि रामायण में है। हम्म। कथा Uh, वाल्मीकि रामायण में let me come to Ramayana's, like Ram's character in Ramayana and the trailer. Ranveer is shown like fully shaved है। and ripped body. How was Ram's character like portrayed in Valmiki's Ramayana? And we are only speaking about Valmiki's Ramayana, not any version of it, only Valmiki's Ramayana. Because I must assume, and as a person who consume a lot of content, I assume when you are living in a jungle for 14 years, you tend to grow some beard. You will have some beard, right? But Ranveer is shown as a person with no facial hair. What is the reality? And there is a side on social media, the criticism is coming that Ranbir Kapoor lacks that charm, that aura, that pureness that a character like Lord Ram needs. He doesn't have that in him. And what's your take on both of the questions? तो पहली बात तो, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्री राम, उनका रंग कैसा है, तो उनको श्याम वर्ण कहा गया है। इतने गोरे चिट्टे तो वो वैसे ही नहीं है। वो हम लोग के जैसे ज्यादा है रादर देन द होल पंजाबी गोरापन, आई थिंक। सो सो दैट इज वन। सेकेंड, वो इतने चॉकलेटी चॉकलेटी भी नहीं है। ही इज एक्चुअली मस्क्यूलर, ही इज वेल बिल्ड। द थिंग इज, हम लोग श्री राम को यूजुअली टीवी के उनके रिप्रेजेंटेशन से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में वैसे नहीं है। जैसे मैंने कहा, श्याम वर्ण है, लंबे चौड़े हैं, वेल बिल्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उनका रूप है, ये बात तो है ही। और सिंह स्कंध, मतलब सिंह जैसे उनके शोल्डर्स है, वैसे ही उनके मसल्स है, उनके उसके उनके चेस्ट भी वेल डेवलप्ड है। ये गूढ़ा जत्रु, यहाँ के जो उनके बोन्स है वो भी प्रोमिनेंट, और यहाँ मसल्स है, इस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन है। सो ही इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग। उनको दिखाया भी वैसे गया है। ही इज नॉट अ चॉकलेटी हीरो। पर आजकल क्या है ना, बिकॉज हमने टीवी में ही देखा है श्री राम को, तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि श्री राम ऐसे बाहुबली होंगे। वी एक्सपेक्ट हिम टू बी वेरी चॉकलेटी चॉकलेटी, सौम्य सौम्य। वो सौम्य थे, बट सौम्य आपके रूप से होता है, आपके आपके वाइब से होता है, इफ आई मेक राइट। नॉट रणबीर्स फॉल्ट, ही इज चॉकलेटी। ही इज नॉट द दैट रीगलनेस
जो एक राजा में होना चाहिए वो नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो जब जाते हैं वन में, तभी वो बालों को भी वो जटा बना देते हैं दूध लगा के, क्योंकि बाल भी नहीं काटने हैं। और दाढ़ी मूछ तो 100% रहेगी ही। तो इतना क्लीन शेव, और मुझे लगता है इवन अदरवाइज दे हैव डन ओवर क्लीन शेव ऑफ रणवीर, मतलब रणबीर, सॉरी। इवन जब वो उनके अयोध्या के जो सीन्स हैं, उसमें भी लाइक बाप रे, इतना ज्यादा कैसे, लुक लाइक अ नॉर्मल हम्म। मैन ना। You don't have to take away his facial hair. It adds to the masculinity. I also want to ask about the look. You must have seen KK's look. Lara Datta is like playing Yeah. that role, and the chiffon sari. I'm not sure if it's chiffon, like well, like salon tight hair and pure sari. I just want to understand from you. Did you read about the portrayal of women and what they used to wear in Valmiki's Ramayana? What sort of clothes did women used to have at that time? What they used to wear at that time? Do we have any description of that? So, uh, साड़ी तो नहीं थी, ऑब्वियसली इट वाज नॉट दिस काइंड ऑफ साड़ी, है ना। हम लोग जनरली जो टेम्पल पोर्ट्रेल्स देखते हैं। Something like off shoulder, if I'm not mistaken. करेक्ट, करेक्ट, ऑफ शोल्डर होगा, एक अंग वस्त्र होगा, धोती जैसा साड़ी का ये होगा, टिपिकली दैट्स हाउ इट वुड बी, Hmm. नॉट द साड़ी। बट आई थिंक ऑन दैट ना, आई एम ओके, कि चलो ठीक है, आप उसको अगर कंटेम्प्रेरी स्टाइल में कर रहे हो और साड़ी ब्लाउज दे रहे हो, दैट इज फाइन, आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज अगर हम एकदम वैसे करने जाएं तो Hmm. इट माइट नॉट बी ओके विथ मॉडर्न सेंसिबिलिटीज इज वेल, तो राइट। थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम दे देते हैं. So on the sari one also I'm okay. Even on the Hmm. looks wise I'm okay. आप जिस भी, if you need to get an actor who acts well, right? But Hmm. I think it shouldn't have been so chocolatey. That's the only हाँ. thing. और वो लोग मेकअप में भी कर सकते थे। आई थिंक वो मेकअप भी ओवर हो गया है, ऐसा मुझे लगता है, उनको एक पर्टिकुलर रूप रंग देने का। I personally think Ranbir looks better otherwise than Oh, how at least it's जो स्पाइस में दिखा रहे हैं, जो जो you have ट्रेलर में often दिखा रहा You have often spoken about the romance between Lord Ram and Mata Sita. You said like a lot of directors, producers, and even TV serial makers avoid showing that. I'm not sure because the trailer doesn't say a lot about the romance. Why do you believe? Because you have like spoken a lot about it that Lord Ram said that to Sita that you are everything to me. If you are not with me, I'm nothing. What, do you think that aspect is being would be shown in that movie? Because that's largely TV serials also. If you look at Ramanand Sagar's TV serial and previous movies also, they slightly differ from that. They do not want to show Lord Ram's that aspect that how much he was deeply in love with Mata Sita. है। नाउ आई डोंट नो दिखाया कि नहीं दिखाया। देयर इज दिस वन सीन जिसमें वो उसके बाल में फूल डाल रहे हैं। लगा रहा होता है हाँ. हाँ, उतना तो लग रहा है कि चलो शायद कुछ रोमांस दिखा रहे हैं। हम्म. एंड आई थिंक दैट द श्री राम सीता जी का जो प्रेम है वो इतना अद्भुत है कि हम्म. उनके शब्दों से दिख रहा है। वो जैसे वाल्मीकि जी कहते हैं कि शब्दों से तो वो कह ही रहे हैं, कितनी बार उन्होंने कहा है कि प्राणेभ्य प्रियतर भार्या, प्राणों से भी प्रिय हो तुम मेरी पत्नी, मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे साथ यहाँ चित्रकूट में मैं इतना खुश हूं कि मुझे वापस अयोध्या भी नहीं जाना। वो ये भी कह रहे हैं कि देवी तव बत दुखे ना स्वर्ग स्वर्गो अपी ना अभिरुचे, तुम्हारे बिना तुम्हें दुख देके मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ऐसे उनके डायलॉग्स हैं। तो डायलॉग के द्वारा उनका प्रेम दिख रहा है। उन्होंने जो किया सीता जी के लिए, ना कोई आर्मी थी, ना कुछ था, ना पता था रावण कहाँ है, और इतना उन्होंने प्रकल्प, पूरा प्रोजेक्ट अंडरटेक किया और इतने महान रावण की सेना को हराया, वो भी उनके प्रेम के लिए। और हमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनके उनके आंखों आंखों से बातें होती थी उनकी। वो एक दूसरे को देख कर समझ जाते थे कि किसके मन में क्या है, हृदय से हृदय बात करते थे। इस प्रकार का उनका संबंध है, दैट यू दे वुड लुक एट ईच अदर एंड उनको समझ आ जाता था इसके मन में क्या चल रहा है। तो दैट इज द काइंड ऑफ रोमांस। लेट्स सी हाउ द मूवी शोज इट। हमें ट्रेलर में ये दिखाया गया है जब लॉर्ड राम वो जो धनुष होता है उसको तोड़ रहे होते हैं. सो द बिल्डिंग्स एट द बैक इट सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट्स नेपाल्स आर्किटेक्चर, है ना. The like the scene like the depiction and historically is it like culturally accurate because बिहार के कहीं एरिया और नेपाल के किसी एरिया से जनकपुर से माता सीता बिलोंग करती थी. Is the depiction actually accurate? What has the Valmiki's Ramayana? What does it say? So Valmiki Ramayana has not given us detailed description as Hmm. such, but it कि भाई तभी exactly क्या था, but it is a grand city, no doubt. दोनों Hmm. अयोध्या और मिथिला बहुत ग्रैंड है, वहां इमारतें हैं, ये सब है। तो आई थिंक दैट इज फाइन। मुझे उसमें जो नहीं अच्छा लगा, और रादर लेट्स सी हाउ इट लुक्स ऑन स्क्रीन, आई एम श्योर इट लुक ग्रेट ऑन द स्क्रीन, दैट ग्रैंडनेस इज देयर, दैट आई हैव टू गिव इट
टू नमित मल्होत्रा. जो ग्रैंडनेस, वो लार्जर देन लाइफ वाला जो सेट का डिपिक्शन दिखाया है, इट इज देयर, बट इट इज अ लॉट ऑफ सीजीआई, which is okay, but I think it's a bit too much. It's not looking real. It's looking like one of Yeah. those वो सुपर हीरो मूवी हो ना, वैसा लगता है. These were real people. These were our bhagwans, but they were real people, although they were larger than life. So there has to be a you need to bring together the larger than life along with that bit of reality. Yeah. अभी उन्होंने जो कैरेक्टर, जो राक्षस वगैरह भी दिखाए हैं, उनको इतना ज्यादा सीजीआई किया हुआ है, जैसे वो That's what I'm coming to. Like some अभी जो scenes and साइक्लॉप और वो सब दिखाया है उसके yeah, जैसा हो गया. some scenes and some creatures like they look inspired by Western fantasy film like Lord of the Rings. Exactly. Do you feel that they want to present Ramayana in a global style? But I also feel that we tend to lose an Indian identity in it. If you are trying to represent it to Namit Malhotra says that this movie is for kids and teenagers and people who are between 18 to 30. Because growing up we have seen Ramayana so many times. But he says this is movie for a global audience. But do you believe that Indian identity, the depth and the realness of Lord Ram, Mata Sita, and entire Ramayana is somewhere missing in the trailer? It might get corrected when it comes on the theaters, but somewhere it is missing. So वही है ना कि you have to make even the Rakshasas. Rakshasas were not out of this world, right? They were people like us. They were tribes who lived in Lanka. वो बात भी अपने जैसे कर रहे हैं, वो यज्ञ वगैरह भी कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अजीब से है. You might have such descriptions as well, but by and large these were people living there who had certain characteristics, जो tribal characteristics आप कह सकते हो, right? उनको इस तरीके से जैसे नॉन ह्यूमन जैसे दिखाना, क्योंकि यश को तो उन्होंने दिखाया है ना, इज अ यूजुअल. तो अब उसके साथ वाले हैं, अगर कुंभकर्ण उसका भाई है ना, तो ही कांट लुक नॉन ह्यूमन जो उन्होंने Yeah. दिखाया. इट ही वाज वे स्ट्रॉन्गर, ही वाज ह्यूज, राइट? बट ह्यूज इज रिलेटिव. ह्यूज टू कंपेयर टू रावण, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट आपने कुछ अलग सा ही क्रीचर बना दिया है. दैट इज वेयर आई वाज लाइक, ओके, they want to convey the scale. Maybe that's fine, it's their creative liberty, but I would have preferred a little bit more realistic portrayal. Millions out there in India and in the entire world are sort of emotionally and spiritually attached to it. And my parents told me that during Ramanand Sagar's Ramayana, people used to remove their shoes, people used to wash their hands, take a shower, and garland the TV before watching Ramayana. But when a mammoth or like epic saga like Ramayana comes to the theater, do you think that it would face massive scrutiny just because people will draw parallel to old Ramayana that Ramanand Sagas has made? And we know what happened to Adipurush. The backlash that movie got, there are still memes out there being made, and Prabhas is still facing backlash for that. Do you believe this movie will face a lot of backlash if it doesn't do the justice with the entire real Ramayana, Valmiki's Ramayana? Actually, I think the team has shied away from being true to Valmiki Ramayana because they are fearing, or maybe they wanted to stay true to रामानंद सागर जी वाला वर्जन. क्योंकि रामानंद सागर जी वाला जो वर्जन है वो मानस से है, तुलसीदास जी के रामचरित मानस से है ना. और तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस है वो थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से भिन्न है, बोथ Yeah. इन टर्म्स ऑफ जिस प्रकार श्री राम को भगवत रूप में देखा जाता है. वाल्मीकि रामायण में भी उनका भगवत रूप का मेंशन तो है, ठीक है, बट ही इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. और जो कुछ ऋषि हैं, या ऋषि हैं, शबरी हैं, उनको है कि भाई ही इज समबडी ग्रेट, ही इज डिवाइन, Yeah. ये उनको है. परंतु जैसे इसमें दिखाया है कि लक्ष्मण भी उनको प्रणाम कर रहे हैं, और ऐसा सब नहीं है, बिकॉज लक्ष्मण तो भाई है ना. ही इज Yeah. वेरी डेडिकेटेड, he is very dedicated. He is looking at Shri Ram as his elder brother, not as भगवान कि भाई वो उनके आजू बाजू में और हो रहा है और वो उसको नमस्ते कर रहे हैं. पर एज ए सेड, बहुत सारी चीजें जैसे द होल रावण थिंग, क्योंकि उसमें भी मानस रामानंद सागर वाले रामायण में भी यही दिखाया है ना कि रावण ने बदला लेने के लिए किया, शूर्पणखा का बदला लेने के लिए किया. Which is उसमें not भी true. हाँ, एग्जैक्टली. और जो लक्ष्मण रेखा दिखाई गई है, Hmm. तो लक्ष्मण रेखा भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है. देर इज नो रियल लक्ष्मण रेखा इन वाल्मीकि रामायण. वाल्मीकि रामायण में एक्चुअली जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वाल्मीकि रामायण में रेखा टूटी है, पर इट इज नॉट अ लिटरल रेखा. उसमें लक्ष्मण के सहनशीलता की रेखा टूटी है, क्योंकि जब मारीच श्री राम को दूर लेके जाते हैं एज पर द प्लान,
हम्म। और वहां से वो हे लक्ष्मण हे सीता इस प्रकार चिल्लाता है श्री राम की आवाज में। तो ऑब्वियसली सीता जी बहुत चिंतित हो जाती हैं और वो लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप जाइए, यू शुड गो, से आपने आपके आपके भाई को बचाइए। Tell तो us about the story when Lakshman denied. He said, I have been promised. I promised my brother I wouldn't leave you करेक्ट। alone." And how Sita ji threatened Lakshman that you have to हाँ, go, you have to save, you have to see what's happening. ये वही वाली कथा मैं बता रही हूँ आपको, ये वही Hmm. वाली कथा है। तो Hmm. लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता श्री राम को, Hmm. वो ऐसे चीख ही नहीं सकते और किसी राक्षस की भी मजाल नहीं है कि उनको इस प्रकार वो हेल्पलेस कर दे, इसलिए आप चिंता मत करिए। बट शी इज लाइक नहीं नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे भाई हैं। एंड ऑफ कोर्स शी इज इन लव विद राम, वो शी लव्स राम मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी वस्तु से अधिक प्यार उनको श्री राम से है। तो वो Hmm. कहती है कि नहीं नहीं तुम जाओ तुम जाओ, बट लक्ष्मण कहते हैं नहीं मुझे श्री राम ने कहा है आपकी रक्षा करना है, वैसे भी सारे राक्षस हमारे शत्रु बने हुए हैं, तो मैं यहीं से नहीं जाऊंगा। तो जब बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं लक्ष्मण, तब सीता जी को और गुस्सा आने लगता है और वो कहती हैं कि तुम तो मित्र रूप में शत्रु हो, तुम दिखते हो मित्र जैसे, तुम बात मित्र जैसे करते हो, पर तुम तो वैसे ही राम के शत्रु हो। तुम तो चाहते हो कि राम तकलीफ में पड़ जाए, उनके साथ कुछ बुरा हो, ये तो तुम चाहते हो। तुम्हें शायद भरत ने ही भेजा है और तुम आए हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि मुझ पर है। पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर राम को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे हाथ में आने वाली नहीं हूं। आप सोचो, अब कितनी देर तक तो लक्ष्मण सुनते रहे, पर जब ये सब कहने लगी सीता माँ, तब फिर ही वॉज लाइक आपके जो शब्द हैं वो मेरे कानों में पिघलते लोहे के जैसे चुभ रहे हैं। वन देवता आपकी रक्षा करे, मैं जा रहा हूं। और इस And then प्रकार he left. देन ही लेफ्ट। तो कोई रेखा बनाई नहीं है जैसे Hmm. दिखाया जाता है ना, Hmm. क्योंकि आगे चल के मानस में और ग्रंथों में सीता जी ने ऐसे कहा, ये शायद किसी के लिए सुनना कठिन हो, और मैं जानती हूँ क्योंकि मैं जब ये प्रसंग के बारे में बताती हूँ तो लोग कहते हैं इसने ऐसे कैसे कह दिया, इसने सीता का अपमान कैसे कर दिया, ऐसे ऐसे कथाएं ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। और ये समझ सकते हैं है ना, बिकॉज Hmm. हम सीता जी को एक रूप में देखते हैं। पर ये Hmm. समझना है कि सीता जी कोई बुरे भाव से नहीं कह रही हैं जो वो कह रही Hmm. हैं। वो Yep. चाहती है कि किसी भी मोल पर, किसी भी तरह लक्ष्मण श्री राम को बचाने जाए, क्योंकि वो Hmm. सच्ची में बहुत चिंतित है। वो सच्ची में Hmm. बहुत चिंतित है और गुस्से में कई बार ऐसे शब्द कहे जाते हैं, है ना। और Hmm. श्री राम भी ये समझते हैं। तो जब लक्ष्मण जी श्री राम को बताते हैं कि वो क्यों सीता जी को छोड़कर आ गए, तो पहले तो श्री राम गुस्सा होते हैं। वो भी लक्ष्मण जी को ही कहते हैं कि अरे वो तो Hmm. चिंतित थी, तुम्हें तो समझ थी ना, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो लक्ष्मण जी को तो दोनों साइड से कहा गया कि भाई तुमने क्या, एक कह रहे जाओ और दूसरे कह रहे क्यों आए। Hmm. तो ये वो Uh, प्रसंग, तो वो रेखा टूटी है, नॉट अ लिटरल लक्ष्मण रेखा। बट hmm. आई थिंक द पीपल जो नमित मल्होत्रा जी और रामायण का जो जो टीम है, दे हैव उनको ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी है, इसीलिए Hmm. जो भाव लोगों में है उन्होंने उसी को बरकरार रखा, रादर देन बी मोर फेथफुल टू वाल्मीकि रामायण। My last question to you is, do you believe Ramayana is the story that should have been told to the world earlier in a mega and epic scale? Like we have seen Odyssey, we have seen a lot of movies from the Europe, from the West, from Latin America that went global. Ramayana and Mahabharata are the stories, are the crown jewels of India. And these stories with so much of learning, with so much of cultural value, should have been told to the world in a better manner. Do you believe that? मुझे लगता है हर चीज का अपना समय होता है। वाल्मीकि रामायण वैसे भी ग्लोबल है, मतलब रामायण वैसे भी ग्लोबल है, नॉट वाल्मीकि रामायण, रामायण वैसे भी ग्लोबल है। But for the kids who are born after 2005, 2006, who are हाँ, not exposed to Ramayana now. करेक्ट। तो जैसे मैं कह रही थी कि आप साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, हर जगह Hmm. आपको रामायण बेस्ड थीम्स दिखते हैं। थाईलैंड के Hmm. राजा को राम कहा जाता है ना। Hmm. आयुथाया, वो अयोध्या के ऊपर से इंस्पायर्ड वो सिटी है। आज Hmm. भी बाली में परफॉर्मेंसेस होते हैं वो रामायण पर होते हैं, जो एक मंदिर में परफॉर्मेंसेस हैं वो रामायण पर हो रहे Hmm. हैं। तो इट हैज बीन ग्लोबल एनीवे। Hmm. परंतु एज यू सेड दीज स्टोरीज हैव अ लॉट टू टीच एंड ऑफर टू द वर्ल्ड। द थिंग इज, क्या हम ही उनको ओरिजिनल रूप में जानते हैं? जो हमने देखा है वो भी उनका रिटेलिंग्स पर बेस्ड है या कुछ फिक्शन पर बेस्ड है, कहीं सुनी बातों को ऐड किया गया, दोनों Hmm. महाभारत और रामायण। रामायण तो ठीक है वो मानस पर है, और राम चेतना आज मानस और बहुत सारे कंब So, रामायण जैसे ग्रंथों पर है जो so भक्ति are ग्रंथ। you, sorry to interrupt you, are saying before presenting it to the world, we need to accept the real stories, not the interpretations of Ramayana.
अगर हमें श्री राम श्री कृष्ण महाभारत और रामायण के टीचिंग्स को हम्म उनके रूप में जानना होगा, तो हमें इन ग्रंथों को अपने रूप में पहले तो समझना होगा। मुझे नहीं हम्म लगता हम भी वो जानते हैं, तो पहले तो हमसे शुरुआत करें। बट हम्म दैट्स मुझे ये भी लगता है कि ग्लोबल स्केल पे दिखाने के लिए यू यू नीड बजट, यू नीड हम्म दैट कैपेसिटी, जो शायद हमारे पास नहीं थी। हम इतना हम्म बड़ा सोचते ही नहीं थे। अब हम्म एटलीस्ट वो सोचना तो शुरू किया है। तो किसी मुझे ने लगता है सोचा। किसी ने तो सोचा। इवन आदि पुरुष, फॉर ऑल द बैकलैश इट गॉट, उन्होंने सोचा तो सही कि इसे बताना हम्म है। सो आई थिंक दैट्स अ हम्म ग्रेट स्टार्ट ऑलरेडी। और अगर मैं एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट अगर आपके माध्यम से यस कहूँ, प्लीज, यस तो प्लीज। अगर अगर एक्टिंग के बारे में मैं नहीं कह रही, पर केवल हम्म लुक के बारे में कह रही हूँ। हम्म आई थिंक प्रभास इज मोर राम लाइक देन रणबीर। जिस केवल लुक के, वो लंबे ओ चौड़े बाल हम्म दिखाए हैं, है ना, जो वो भाव है श्याम वर्ण, हम्म तो जस्ट दैट मच। आदि द पुरुष का बैकलैश वाज आई फिजिकल अपीयरेंस वन। बस फिजिकल अपीयरेंस में वो है। आदि पुरुष में आई हम्म थिंक द डायलॉग्स में दे टुक अ लिटिल बिट मोर लिबर्टी, क्योंकि या यू हैव टू सी राम एज रामायण इन अ सर्टेन वे विद दैट भाव। और वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट ट्रेलर से दिख रहा है कि हम्म भाषा में वो मर्यादा बनाए रखी है। हम्म आई थिंक हम्म delivery could have been better, but that हम्म also could be our bias because we are used to seeing Ranveer in a certain way. But at हम्म least भाषा की वो मर्यादा, हिंदी की शुद्धता, हम्म। एटलीस्ट उतना ट्रेलर से दिख रहा है। तो या सम क्रेडिट टू देम ऑन दैट। थैंक्स अ लॉट, लेट्स सी हाउ दिस मूवी पैन्स आउट, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। दिवाली को रिलीज होने वाली है। लेट्स सी, वी विल स्पीक वंस अगेन आफ्टर द मूवी इज रिलीज्ड। आई आस्क यू टू स्पेयर सम टाइम फॉर अस। इट वाज रियली नाइस स्पीकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट। तो जय सिया राम। थैंक्स, जय सिया राम, थैंक्स अ लॉट।